All right, let's please go back to Hebrews chapter 2, verse 14. इब्रानी किताब इसका दूसरा अध्याय 14 वचन पे हम जाएंगे। So the word said, through his death, he destroyed the devil. तो उसने देखा उसकी मृत्यु के द्वारा उसने शैतान को हरा दिया। And it speaks to us about Jesus coming down to this world. He took the form of a human being. He came in flesh and blood. तो ये वचन इस बारे में सिखाता है कि यीशु मसीह मांस और लहू में आया इस पृथ्वी पर, And through his death, और उसकी मृत्यु के द्वारा he destroyed the devil. और उसने मृत्यु को हरा दिया। And the next part says, दूसरा वचन कहता है, आप कृपया बात न करें। right? So verse 15 says, and release those who through fear of death were all their lifetime subjected to bondage. और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासों में थे, उन्हें छुड़ा ले। So all of us, हम सभी लोग before knowing Jesus, यीशु मसीह को जानने से पहले we were under the fear of death. हम लोग मृत्यु के भय में थे। And if you look around, हम देखते हैं हमारे आसपास में people who are not in Jesus, जो लोग यीशु मसीह में नहीं है, वे लोग, the greatest fear everyone has is about death. और सबको भय खाली मृत्यु का होता है, सबसे बड़ा भय। Yes or no? हाँ या नहीं? So death is a reality. सत्य एक वास्तविकता है। The question usually they ask is, what will I do if I die? सब लोग ये सवाल पूछते हैं, अगर मैं मर गया तो मैं क्या करूंगा? What to do? Done. खत्म, मर गया तो खत्म, There is nothing to do. कुछ करने के लिए नहीं है। Right now, now imagine that is the main fear. That is the greatest fear of everyone. और सबका सबसे बड़ा भय यही होता है, मृत्यु। So if you look around to, I should say, I don't know, counter is the right word, but to do something against this death process is what everyone is trying. तो जो मृत्यु के प्रति उसके विरुद्ध कुछ करने के लिए हर कोई ये कोशिश कर रहा है कि कुछ करे उसके विरुद्ध। Fair and Lovely. Why is Fair and Lovely promoted? आपको पता है फेयर एंड लवली हम लगाते हैं You will look younger. ताकि आप जवान दिख सको। Yes or no? हाँ या नहीं? Hey, tell the truth. ए सच्ची ही बोलो यार। You see any kind of cosmetic products or any kind of major businesses. What happened? Fair and Lovely you want? क्या हुआ, आपको फेयर एंड लवली चाहिए क्या? Listen. सुनिए सुनिए। Now, any major business in this world, it is all revolving around death. How to protect people from death. तो हम दुनिया में देखते सबसे बड़ा जो बिजनेस है, कारोबार जो है, वो एक ही है कि किस तरह से मृत्यु से हम बचे। And there are also even little more smarter people. They would say, take this so that in case you die, your family is protected. और इससे स्मार्टर लोग जो लोग हैं, होशियार लोग ये कहते हैं, अगर ये लीजिए, अगर ये मर जाएगा तो आपके परिवार को हो जाएगा। Right. So everything, because that is the greatest fear. So people, the business people would make use of that. I mean, we cannot blame them completely also. हम उनको दोष नहीं लगा सकते पूरी रीति से, लेकिन वो ये कोशिश करते हैं कि मृत्यु का भय के बारे में हमें सिखाते हैं। But everybody has this fear. लेकिन सबको इस बात का भय है। But one thing we notice is those who know Jesus, लेकिन हमने ये देखा है जो यीशु मसीह को जानता है, they are out of this fear. लेकिन वो इस भय से आजाद है। Why? क्यों? One reason is एक कारण है, of course, the greatest reason is सबसे बड़ा कारण ये है, we have eternal life. क्योंकि हमारे पास अनंत काल का जीवन है। We die here, doesn't matter. I'm living with Jesus. अगर हम यहाँ पे मरते भी हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यीशु के साथ में सार्वकालिक जिंदगी जीवन जीऊंगा। So say this, कोई फर्क नहीं पड़ता. कोई फर्क नहीं पड़ता। Amen. आमेन। It's okay. कोई फर्क नहीं पड़ता। That's why Apostle Paul said, if I live, I live unto Jesus. If I die, for Jesus. इसलिए प्रेरित पौल ऐसा कहता है, अगर मैं जीऊंगा तो यीशु मसीह के लिए, मरूंगा तो यीशु के लिए। Because he has this, he got this revelation.
Death cannot hold me down. क्योंकि उसको ये प्रकाशन मिला, अबे मृत्यु मुझे पकड़ नहीं सकती। And if a person doesn't fear death, then we know that he is sorted. Sorted means how? No, forget it. Let's go forward. Now, if a person doesn't fear death, we know that he is so strong in the truth of eternal life. अगर कोई व्यक्ति मृत्यु से डर नहीं पाता तो हमको समझ आता है कि वो अनंत काल के जीवन में बहुत भरोसा रखता है। Can someone read Colossians 3:3? हम कोलोशियन 3:3 पढ़ सकते हैं, कोई एक जन? Colossians 3:3. कोलोशियन 3:3। We died. You died. Your life is hidden with Christ. Did you see that? So what happens when we die? क्या होता है जब आप मृत्यु प्राप्त करते हो? Our life is hidden with Christ. तुम्हारा जीवन मसीह यीशु के साथ में छिपा हुआ है Are जब you तुम मर happy जाते about हो। this? क्या तुम इस बात पे संतुष्ट हो? Is there any more safer place than that? इससे सुरक्षित स्थान कुछ और है क्या? So I'm out of fear of death. अभी मैं भय से आजाद हूँ, मृत्यु के भय से आजाद हूँ मैं। You are free नो, तुम अब आजाद हो, from the fear of death. तुम मृत्यु के भय से आजाद हो। You live in victory. जब तुम जीते हो तुम विजय से जीते हो। You die, you still die in victory because your life is hidden in Christ. अगर तुम मरते हो तो भी मृत्यु में, विजय में मरते हो क्योंकि तुम्हारा जीवन यीशु से जुड़ा है। अब Are you, tell me the truth, are you understanding? अब सत्य को बताइए, क्या आप समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं आपको? Anybody still has fear of death? किसी को मृत्यु का भय है क्या? आप है क्या? This is the presence of God. Okay, don't lie. अब झूठ मत बोलिए। Anybody? We can explain again, no problem. This is a very important truth. ये बड़ा सत्य है। We don't fear death. हम मृत्यु से डरते नहीं। No, of course, we will have some worry about what will happen to my children, my family. शायद हम चिंता करते होंगे कि मेरे जाने के बाद मेरा परिवार, मेरे बच्चों को क्या होगा। But there is no point of worrying because you are dead. लेकिन आप चिंता करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप मर चुके हो। Amen. If God has given us family, God will take care of them. अगर परमेश्वर ने परिवार दिया है तो वो अपने परिवार का ध्यान भी रखेगा। But your life is hidden in Christ. लेकिन आपका जो जीवन है परमेश्वर में छिपा है। Your life is hidden in Christ. You are released from the fear of death. तुम्हारा जीवन यीशु मसीह में छिपा है, अब तुम मृत्यु से आजाद हो। Any doubts, anybody? किसी को शक है कुछ? Or should we do something to get after death? Okay, after death, my pastor will pray for me, then I will go to heaven. ऐसा कुछ है कि जब मैं मर जाऊंगा तब मेरा पासबान आके मेरे लिए दुआ करेगा, फिर मैं स्वर्ग में जाऊंगा? ऐसा कुछ है? We are not. If we are not in Christ, how much ever pastor prays, we will still not be on the other side. अगर आप मसीह में नहीं, आपका पासबान कितना भी प्रेयर करे, आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। Nobody will pray, first of all. लेकिन सबसे पहले कोई भी प्रेयर नहीं करेगा, कोई But पासबान नहीं। there is a wrong understanding. I mean, you also would have heard about this. Like after death, prayers are being prayed for the departed soul to get them rest. Not possible. आपने शायद देखा होगा कि कुछ लोग ऐसा है जो प्रार्थना करते हैं, जो लोग मर जाते हैं उसके लिए दुआ करते हैं ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। One life. एक जीवन। What we do in this life matters for our eternity. तो जो कुछ इस जीवन में करते हैं वही मान्य रखता है कि मृत्यु के बाद क्या होगा। How can it be fair if a person is a horrible sinner and people are praying and sending him to heaven? ये कैसे जायज है? अगर कोई एक पापी व्यक्ति बहुत पाप कर रहा हो, मर गया, उसका प्रेयर कर रहे कि स्वर्ग में जाए, ये कैसे जायज है? All the while they were in sin, they enjoyed their life, and after death people are praying and sending to heaven. How is it possible? तो ये कैसे हो सकता है कि धरती पे जब वे लोग थे, पाप करते थे, अपना जीवन को अश्लील बातों में गुजारते थे, और मरने के बाद जब प्रेयर करके, ये कैसे हो सकता है कि वो स्वर्ग में जाएंगे मरने का, जो उनके लिए दुआ करेंगे तो? So that is not possible according to the word of God. ये वचन के जरिए हो नहीं सकता। It is appointed for a man to die and to stand before the judgment seat of God. और एक बार मनुष्य के लिए मृत्यु घोषित किया गया, उसके बाद में न्याय। Once. एक ही बार। We cannot come back to this world again and live one more time and all that. और ऐसा नहीं हो सकता कि मरने के बाद फिर वो आएगा, जिएगा, ऐसा नहीं हो सकता। No rebirth. कि कोई फिर से पुनर्जन्म नहीं है, Only born again. केवल नया जन्म है। We know the difference, right? आपको पता है नया जन्म, पुनर्जन्म? So that's why Jesus said, when we are born again,
You are not dying. You have eternal life. जब आप नया जन्म लेते हो तो आप मरते नहीं हो, आपके पास अनंत काल का जीवन आता है। So when we die, we are separated from this world. जब हम मरते हैं, हम जब एक क्रूस पे मरते हैं तो ये दुनिया से अलग किए गए हैं। Our body goes to the world, body goes to the earth, हमारा जो शरीर है मिट्टी में मिल जाता है, and our spirit goes to our heavenly और Father. जो हमारा Jesus. आत्मा है परमेश्वर के पास जाता है, यीशु मसीह के पास। Amen. आमेन। Colossians 3:3. कोलोसियन 3:3 ऐसा कहता है। What did you read? क्या आपने पढ़ा? You died, and your life is hidden with और Christ. उसमें ऐसा लिखा है कि हम मर गए और हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह में छिपा है। Verse 4. 4 भी। When Christ our life appears, what happens? मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। He will bring us with him in glory. तो जब हम वो जब प्रकट होगा तो उसके साथ में हमें भी वो महिमा सहित प्रकट करेगा। So when the Lord returns, जब परमेश्वर आएगा we will come with him. तो हम उसके साथ में आएंगे। Till then, तब तक our spirit is safe. तो हम सुरक्षित है। We enter into rest, तो तब तक हम विश्राम में पहुंच जाते हैं। eternal rest. हाँ, अनंत काल का विश्राम। Whatever people do in this world doesn't matter. तो जो कुछ दुनिया में करे उससे फर्क नहीं पड़ता। We are in rest. हम विश्राम में हैं। No prayers can make the rest better or worse. तो कोई भी विश्राम हमें या अच्छा या बुरा नहीं कर सकता। Are you listening? क्या आप सुन रहे हो? So when we are in Christ, we do not have fear of death. जब मसीह में हम होते हैं तो हमें मृत्यु का भय नहीं होता। We have a confidence. हमें आत्मविश्वास है, साहस है। What is our confidence? हमारा साहस क्या है? I died, my life is hidden in Christ. मैं मरा और मेरा जीवन यीशु मसीह में छिपा है। And when Christ our life appears, he will bring me with him in और जब glory. यीशु मसीह आएगा तब उसके साथ में महिमा में प्रकट में मैं भी Till होऊंगा। then I'm safe. तब तक मैं सुरक्षित हूँ। Amen. आमेन। Are you confident with this point? क्या इसके साथ आपको धैर्य आया है? So don't worry about the things of the world. आप इस दुनिया की चिंता ना करें। First of all, you are crucified with Christ. सबसे पहला आप यीशु मसीह के साथ में क्रूस पर चढ़ाए गए The हो। book of Colossians also teaches us that you are crucified to the world and world to you. तो हम देखते हैं कि कोलोसियों की किताब में ये कहते हैं आप संसार के लिए क्रूस पर चढ़ाए गए और संसार आपके लिए क्रूस पर चढ़ाया गया है। Anyway, the world doesn't have an influence over you. तो कोई भी दुनिया का प्रभाव आप पे नहीं गिर सकता। So when you say bye to the world, say bye bye happily and go. तो आप जब जाएंगे दुनिया से कहेंगे बाय बाय, मैं जा रहा हूँ। Amen. आमेन। We are happy to die. हाँ, हम लोग खुश हैं मरने के लिए। But Apostle Paul also says, but लेकिन प्रेरित पौल ऐसा कहता है, लेकिन as long as I live here on this world, जब तक इस पृथ्वी में मैं जीवित हूँ, I want to be an example to you, to be beneficial, to be blessing for you. तो जब तक इस पृथ्वी पे हूँ तब तक मैं उदाहरण का जीवन जीना चाहता हूँ ताकि बाकी लोग के लिए भी एक आशीष का कारण ठहरे। As long as we live here on this world, we walk in authority over the schemes of the enemy. तो हम देखते जब तक इस दुनिया में हमें तब तक हम उस अधिकार में चलेंगे जो शैतान के अधिकार पे हमें अधिकार दिया गया है। When the life is over, जब जीवन खत्म होता है, when समाप्त होता है, Jesus calls us back, जब यीशु मसीह हमें बुला लेता है, we are happy to go to him. हम खुशी से उसके पास जाते हैं। Some of us are thinking, no, we are still young. तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मैं जवान हूँ। We are still young. Yeah, we're all still young. आप जवान I'm also हैं, young. मैं भी जवान हूँ। Younger than all of you. सबसे अधिक छोटा हूँ मैं। Yeah. But we live with this perspective लेकिन हम इस दृष्टिकोण से जीते हैं that I do not fear death ये कि मृत्यु से मैं नहीं डरूंगा because my life is in the hand of Jesus. क्योंकि मेरा जीवन यीशु के हाथ में है। Are you all happy? क्या आप संतुष्ट हैं? Or do you feel like you are in a funeral service? क्या आप ऐसा लग रहा है कि आप किसी के मैयत में आए हो? Everybody okay? Well, let's read that verse one more time. Hebrews 2, 14, 15, and the last part of verse 14 हम onwards. That पढ़ेंगे through इब्रानी death, किताब दूसरा अध्याय 14 वचन 15 वचन he पढ़ेंगे। might destroy him who had the power of death, that is devil, and release those who through fear of death were all their lifetime subject to bondage. ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। Now, when Apostle Paul, I would give you one small homework. अभी मैं तुमको एक घर का अभ्यास देना चाहता हूँ। When you go back home, read 1 Corinthians 15. जब आप अपने रूम में जाएंगे तब आप क्या करना है कि पहले कुरिन्थी 15 अध्याय पढ़ना है। Which one? 1 कुरिन्थी 15। Did you hear that? पहले कुरिन्थी 15। Okay. 1 Corinthians 15. पहले कुरिन्थी 15। So 1 Corinthians 15, Apostle Paul talks about what happens when we die.
पहले कुरिन्ती 15 अध्याय इसके बारे में बात करता है, जब हम मरते हैं तो उसके बाद क्या होता And है। usually this portion is read during funeral. तो बहुत सारे बातें कि जब देखते हैं कि जब किसी का देहांत हो जाता है उस समय ये इस वचन को हम पढ़ते हैं। But we should read before we die. Okay? लेकिन हम मरने के पहले से पढ़ना चाहिए। 1 Corinthians. पहले कुरिन्ती Hey, what happened? 1 Corinthians? 15. 15, no? 15 करेक्ट। Correct. Yeah, so in that, Apostle Paul describes about all of this. और उसमें देखा प्रेरित पौल उसमें अच्छा विवरण देता है। And he says what happens when the Lord returns. तो वो कहता है कि क्या होगा जब यीशु मसीह फिर से लौट आएगा। And the way he builds up that passage is so beautiful. तो जिस तरह से उस अध्याय में वो बताता है, बहुत अच्छे तरह से बताता है। He says the corruptible will put on the incorruptible. तो देखते हैं कि नाशवान शरीर अविनाशी नाशवान शरीर से अविनाशी शरीर हमको प्राप्त होगा। And what happens to this body? और इससे क्या होगा? And then the next word he says, "Oh death, where is your sting?" और कहता है कि मौत तेरा डंक कहाँ है? Where is the sting? Sting is broken because now we have eternal life. मौत तेरा डंक कहाँ है? वो टूट चुका है क्योंकि हमारे पास अनंत काल का You जीवन and I है। do not fear death अभी आपको मृत्यु का भय नहीं है because the power of death is broken. क्योंकि पाप मृत्यु की जो सत्ता है वो टूट चुकी है। Amen. आमेन। So when we die, our life is hidden with Christ. जब हम मर जाते हैं, मृत्यु पाते हैं, तब हमारा जीवन यीशु मसीह में छुपा होता है। So if we do not have fear over death, अगर हम मृत्यु पे हमारा भय नहीं है तो मृत्यु के प्रति, then our life in this world is very peaceful. तब इस दुनिया में हमारा जीवन बहुत अच्छा से गुजरेगा। The maximum the world can do to us is to take our life. दुनिया में हद से बढ़कर एक ही कर सकता है कि वो दुनिया हमारा प्राण ले सकती है, और क्या कर सकती है। You take my life, I'll go to Jesus. तू मेरा जीवन ले लो, मैं स्वर्ग में यीशु के पास जाऊंगा। Amen. लेकिन This was the confidence of all the greatest missionaries who were living in our India. और जितने भी मिशनरी हम भारत में आए थे उन सबका यही साहस था कि हम मरेंगे तो यीशु के साथ पहुंचेंगे। Till the last breath they live for Jesus. और अंत के क्षण तक वो यीशु मसीह के लिए जिए। They were not scared to die. वो मरने के लिए डरते नहीं थे। They were asked, what would you do? उसने कहा क्या कर सकते हो तुम? We will kill you. उसने कहा कि हम तुम्हें मार देंगे। Kill me, I'll go to Jesus. तो मार दो मुझे, मैं यीशु के पास जाऊंगा। I am saved, you are perishing. मैं बच चुका हूँ, तेरा नाश हो रहा है। Amen. आमेन। No fear of death कोई मौत की डर नहीं, because we have eternal life. क्योंकि हमारे पास अनंत काल का So जीवन है। this is what Jesus did when he came to save us. ये कार्य यीशु मसीह के जब वो आया हमें बचाने के लिए। What a great privilege we have. हमारे पास कितना महत्वपूर्ण, ये कितना बड़ा सौभाग्य है। The greatest pain of this world has become our greatest joy. तो देखो दुनिया का सबसे बड़ा जो दुख है हमारे लिए सबसे बड़ा आनंद का कारण बन चुका है। आमेन। Don't say amen just to pacify us. तो जोर से आमीन इसलिए मत बोलो कि ताकि हमें खुशी मिल सके या तुम्हें खुशी मिल Are सके। you understanding? क्या आपको समझ में आ रहा है? Okay. All right. So we are delivered from the fear of death. हम मृत्यु के भय से छुटकारा प्राप्त कर चुके हैं। One more word. First Peter chapter 1 verse 18 and 19. फर्स्ट पीटर पहला पत्रस पहला अध्याय 18-19। We read this word and the second part of verse 18 says, you are redeemed from the traditions from your fathers. Aimless conduct received by traditions from your fathers. ओके, यहाँ पे लिखा जाएगा तुम्हारा चाल चलन जो तुम्हारे बाप दादों चला आता है उससे तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। So we are also redeemed from the traditions or vain manner of life from our fathers. तो देखते हैं कि हमारे बाप दादों का चाल चलन से हमें छुटकारा हुआ है। Can we all listen to this, please? This is interesting. क्या आप लोग इस बात को सुनेंगे? ये बहुत रुचिकर है। Sometimes, बहुत बार ऐसा होता look at me, everybody. है, Look at कभी me. कभी ऐसा होता है When we get angry at home, जब हम क्रोधित हो जाते हैं अपने घर पर। I don't know if this has happened to you, but this has happened to me. लेकिन मुझे पता नहीं आपके साथ में होता है कि, लेकिन ये मेरे साथ में होता है। Maybe when we are angry or any of that sort, we would say, "You got it from your father." जब ऐसा हो जाता है, जब हम गुस्सा हो जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि ये इसके बाप की वजह से इस पे गुस्से का चरित्र दिख रहा है। She got it from her mother. अब बोलते हैं ना ये तेरा माँ का जो लक्षण तेरे अंदर मुझे दिख रहा है। बिल्कुल माँ के जैसा. Exactly like मम्मी। Right? Exactly like your father. Like, Now, what Exactly have we like that. received from our fathers? हमने पिता से क्या प्राप्त किया? Maybe several good things, बहुत सारे अच्छी बातों को प्राप्त किया, but maybe we have also received some wrong things. लेकिन गलत बातों को भी हमने धारणा की। Oh, my father had a diabetes at 40 years old, 40 years of age. जब मेरे बाप को डायबिटीज है 40 की उम्र में, Now, when we reach near 39, जब हम 39 में पहुंच जाते हैं we're scared.
40 my father had, my great grandfather had. All of them had diabetes when they were 40. मेरे पिता को भी था, मेरे बाप दादा को भी था, 40 की उम्र में शायद मुझे भी हो सकता Now है। when we reach 40, we are like, oh, will I get diabetes? तो हमें भय लगता है अगर मैं 40 में पहुंच जाऊंगा तो क्या मुझे भी होगा डायबिटीज। Okay, now tell me, what is your answer? आपका उत्तर क्या होना चाहिए? बाकी लोग को उत्तर, और बाकी लोग को उत्तर some of them। Why do we say that? हम क्यों कहते हैं ऐसा? Word says you're redeemed from the vain manner of life received from your fathers. लेकिन बाइबल कहता है कि आप अपने बाप दादाओं के परंपरा या प्रथा से छुटकारा प्राप्त कर चुके हो। See, we do understand the medical side of it. हम देखते हैं कि शासकीय तौर पे जो चिकित्सक तौर पे हम जब देखते हैं कि मेडिकल जिसे कहता है उसके तौर पे हमारे अंदर कुछ आ सकता है। Now, usually we say that there is a genetic predisposition. There is something which is in the genes which would trigger this during the time. तो हम देखते हैं कि जीन्स का जो मेरे था वो शायद आने के चांसेस है। You know, that's what the medical science says. तो वो जो मेडिकल के बारे में जो कहता है वो हो सकता है। We are not denying that. हम लोग- What the medical science say, हम लोग उसका इनकार नहीं कर रहे जो मेडिकल साइंस कहता है इसके बारे में, but I am not taking it लेकिन हम लेते नहीं है because the word says I'm redeemed from that. क्योंकि बाइबल कहता है हम छुटकारा प्राप्त किए हैं। So if I fear this, अगर मैं डरूंगा इस बात के लिए, then इट विल कम। it can come तो अगर मैं डरूंगा तो मेरे अंदर आएगा, because I'm opening a door. क्योंकि मैं उसके लिए द्वार खोल रहा हूँ। Are you understanding? क्या आपको समझ में आ रहा है? I'm fearing, I'm opening a door, enemy comes, मैं डर रहा हूँ, मैं दरवाजा खोल रहा हूँ, वो आ सकता है मेरे अंदर, but I choose to deny that लेकिन मैं ये इस बात का इनकार करता हूँ because the word says I'm redeemed. क्योंकि बाइबल कहता है मैंने छुटकारा प्राप्त किया। Are you getting this? आपको समझ में आ रहा है ये? So your father had diabetes doesn't mean that you should have. अगर आपके पिता को शुगर है तो इसका अर्थ ये नहीं कि आपको भी शुगर होगा। Your father had cardiac problem doesn't mean that you should have. आपके पिताजी को हृदय का प्रॉब्लम है, इसका मतलब आपको भी हृदय का प्रॉब्लम नहीं होगा। I know it is a little too tight to understand, मुझे पता है कि ये कठिन है आपको समझने के लिए ये बात, but I want you to believe it. लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इस बात पे विश्वास करें, Don't give an open door for the enemy. क्योंकि आप शैतान के लिए द्वार नहीं खोल सकते। शैतान के Okay, लिए कोई there द्वार नहीं can खोलो। be a case for everyone else, ये दूसरे के लिए हो सकता है, but I am redeemed. लेकिन मैं छुटकारा पाया हूँ, I'm not taking this. मैं ही नहीं लेता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। So when you go through something like this, you can reject it and declare the word of God. अगर आप ऐसे किसी बातों से जा रहे हैं तो उसका आप तिरस्कार कीजिए। Aimless conduct received by tradition from your fathers. तो हम देखते हैं कि सारे चाल चलन जो हमारे बाप दादा से प्राप्त है उससे हमें छुटकारा It पाया है। can be emotional part, like as we said, temper issues. तो हम देखते हैं कि हमारे भावनात्मक भी हो सकते हैं। Maybe somebody, I don't know, I just sense in my spirit to say this. Maybe somebody has died by suicide in family. कभी मैं अपने में ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि शायद कोई हमारे घर में कोई आत्महत्या किया होगा। And this has been a pattern in family. और देखते हैं कि ये इसे कि लगातार ये होता आ रहा है। Maybe there are chances or there are times when a particular time of the year one incident happen. तो हम देखते हैं कि साल में एक बार ये घटना हमारे परिवार में होता है। And we see the pattern. Okay, maybe I'll just take an example. Every August there is some loss. तो हम देखते हैं कि ये ऐसा श्रृंखला में आ सकता है, जैसे अगस्त में ये लॉस होता है, ये खत्म होता है। Or every once, yes, basically I'm trying to say there is a pattern which we see. हम देखते हैं कि श्रृंखला में ऐसा होते रहता है। So what should we do when we see that pattern? लेकिन जब ऐसा होता है तो हमें क्या करना चाहिए? We reject that. उसको आप इनकार करें। I'm not taking this into my family. तो उसको कहे कि ये मेरे परिवार में जायज नहीं है, We are the redeemed of the Lord. क्योंकि हम परमेश्वर के द्वारा छुड़ाए गए हैं। Are you understanding? क्या आपको समझ में आ रहा है? Don't live under fear. आप मृत्यु के भय में न जिए। You are redeemed from the vain manner of life received by tradition from your forefathers. कि आप देखते हैं कि अपने बाप दादा के चाल चलन से आप छुटकारा प्राप्त किए हैं। So don't take this. आप इसको मत लीजिए। Your great grandfather had financial problem, debt doesn't mean that you should have it. अगर आपके बाप दादा के पास कर्जा था, इसका अर्थ ये नहीं कि आप भी कर्ज में रहोगे। Because the word of God says he became poor that we may be rich. बाइबल का वचन ऐसा कहता है, वो हमारे लिए दरिद्र बना ताकि हम धनवान बन सके। So you don't have to carry the burden of your forefathers. आपको अपने पूर्वजों का बोझ लेके नहीं चलना है, It is broken over your life. क्योंकि आपके जीवन से उसका जो बंधन है वो तोड़ा गया है। Amen.
आमेन। Maybe after knowing Jesus also, if you see this as a pattern in life, अगर आप अपने जीवन में इस श्रृंखला को देखते हैं, now you're realizing it. Today you're realizing this. आप इस बात को आज समझ रहे हो, Today you cancel it. आज ही उसका इनकार करो। Whatever has happened by words or deeds, if it is affecting us, today you cancel it. अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ हो रहा है, आपके बाप दादा से कुछ चल रहा है, तो आज ही उसका इनकार करो, Because God has appointed authority over your tongue. क्योंकि परमेश्वर ने आपके जबान पे अधिकार दिया है। Do you believe that? क्या आप इसको समझ रहे हो? All of us? So whatever people have spoken over our life, you don't have to carry it, you break it in the name of Jesus. जो कोई भी लोगों ने हमारे प्रति कहा है, आपको लेके वो चलना नहीं है, आपको उन बातों को तोड़ना है, You're free from that. क्योंकि आप उससे आजाद हो चुके हो। So you're redeemed from the power of darkness, आप अंधकार से छुटकारा पाए हो, from the curse of the law, व्यवस्था के श्रापों से छुटकारा every पाए, lawless deed, हर अधर्म के कामों से this छुटकारा पाए, present evil age, वर्तमान बुरे संसार से छुटकारा from the पाए, fear of death, मृत्यु के भय से छुटकारा the पाए हो, vain manner of life of our और forefathers. हमारे पुरखों के चलते आए बुरे चाल चलन से छुटकारा And पाए। we are redeemed to God. हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप किया है। Now we have close relationship with God and we are redeemed unto God. We belong to God. अभी हम परमेश्वर के हैं। हम अब So what is the application? Application is इसका this, उपयोग क्या है? that Psalm 107 verse 2 we read, let the redeemed of the Lord say so. भजन संहिता 107:2 में कहता है, यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहे। ऐसा ही के मतलब say the same thing, ऐसा ही कहे मतलब say the same thing, meaning say that you are redeemed. तो इसका अर्थ है कि आप बोले कि मैं छुड़ाया गया हूँ, Let the redeemed of the Lord say so. और परमेश्वर को छुड़ाया हुआ ऐसा ही कहे। Let the are all of us redeemed? क्या आप सब छुटकारा पाए हो? So we need to say that we are redeemed. आपको कहना है कि मैं छुड़ाया गया हूँ। Amen. आमेन। We look at our lives and say, I am redeemed. अपने जीवन को देखते और कहते हैं कि मैं छुड़ाया गया हूँ। I'm redeemed from the power of darkness. हम अंधकार के शक्ति से छुड़ाया गया I'm हूँ। redeemed from the curse of the law. मैं व्यवस्था के श्रापों से छुड़ाया गया हूँ। I'm redeemed from fear of death. हम मृत्यु के भय से छुड़ाया गया हूँ। I'm redeemed from vain manner of life. तो हम देखते हैं कि पुराने पूर्वजों के चाल चलन छुड़ाया गया हूँ। I'm redeemed from every lawless deed. हर एक अधर्म के कामों से मैं छुड़ाया गया हूँ। Jesus paid the price and I'm redeemed. तो यीशु मसीह ने दाम चुकाया, अब मैं छुटकारा पाया हूँ। Let the redeemed of the Lord say so. और परमेश्वर को छुड़ाया हुआ जन ये कहे। And Revelation chapter 12 verse 11. हम देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य 12, And they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. और उन्होंने मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। The blood was shed for us. जो खून, जो रक्त हमारे, जो लहू हमारे लिए बहाया, Jesus paid the price. यीशु मसीह ने दाम चुकाया, You and I are redeemed. और तुम और हम छुटकारा पाए हो, So we overcome. तो ताकि हम जयवंत पा सके। We live an overcoming life because of this. हम लोग जयवंत का जीवन जीते इसीलिए कि यीशु मसीह हमारे लिए जयवंत पाया है। Are we all clear with this? इससे ये आपको स्पष्ट हो चुका है ये वचन? Any questions? आपको कोई सवाल है? Anybody online? Any questions? जो ऑनलाइन में कोई सवाल करना चाहता है तो पूछ सकता है इस विषय पर। Are we all? No, sir. Okay. If it is clear, can you show a thumbs up? Everything is अगर okay. आपके लिए सब बातें स्पष्ट हो चुकी है तो आप अपना थम्स अप का जो साइन है वो दिखा सकते हैं। It's all are showing. 1% showing. Great. Thank you. Any questions here? अगर आपको कोई सवाल है तो पूछ सकता है। Yeah, go ahead, brother. Anyone? Yes. How can we overcome negative? नेगेटिव फैमिली पैटर्न। Yeah. How can we overcome negative family patterns? First of all, identify the pattern. Identify what is happening. So some examples we already gave, like maybe a suicide, maybe financial problem, sickness. We identify that this is happening. And we speak the blood of Jesus. Because this blood of Jesus is what liberated us. Clear? So whatever has happened by words
or by deeds. It needs to be cancelled when we speak with our words. हाँ, तो उनका सवाल ये था कि हम कैसे इस पे जीवन पा सकते हैं अगर हमारे परिवार में नकारात्मक नमूने के तौर से कुछ चल रहा है। तो पास्टर ने कहा कि सबसे पहले हमें कबूल करना है, जो शब्द के द्वारा कहा गया या क्रिया के द्वारा उसका इनकार करना है या हमें कबूल करना है। So Proverbs 18:21 says, नीति वचन इसका 18 अध्याय 21-22 में कहा गया है, death and life are in the power of the tongue. आपके मुख में सामर्थ्य, मृत्यु और जीवन आपके मुख में है, Right? And those who believe it will eat its fruit. और जो उसको इस्तेमाल करना चाहता है उसका फल उसको प्राप्त होगा। Proverbs 18:21. वहां पे देखते हैं कि नीति वचन इसका 18 अध्याय 21 वचन। So it is a way that God says, if you want to choose life, if you want to see life, you speak the right word. तो वचन ऐसा कहता है कि परमेश्वर ऐसा कहता है कि अगर आपको जीवन चाहिए तो आप अपने मुख से जीवन की बातें करें। And our words carry a lot of power. हमारे शब्द बहुत सारा सामर्थ्य को लेकर चलता So है। when we see this pattern in family, जब हम ये नमूनों को हमारे घरों में देखते हैं हम, there is also one more side to it. एक और भाग है इसका, If there is anything that has happened by the mistakes of our family, कभी हमारे परिवार की कुछ गलती से ऐसे हो जाता है, we did something wrong to poor people or things of that sort. तो कभी हम किसी गरीब के साथ में कुछ अन्याय हम करते हैं, If possible, if those people are alive, make amends with it. तो हम देखते हैं कि Restore it. अगर हम किसी गरीब के साथ कुछ अन्याय करते हैं तो जब अगर वो जिंदा है तो हमें क्या करना, उनके साथ मेल मिलाप करना है। And this, let's say something had happened that maybe our fathers or our forefathers were very rude to maybe young poor people, and because of that, they would have done some witchcraft or anything, and it is now coming as a pattern. तो हम देखते हैं कि हमारे जो पूर्वजों ने कुछ किया है, वो लोगों ने कुछ गलत काम किया होगा, उसके जादू टोना कुछ असर हो सकता है। And if it is because of any problem from our family, हमारे परिवार से कुछ समस्या होगा, we can ask the Lord for forgiveness on behalf of our family. तो हमारे परिवार के उनके तरफ से हम परमेश्वर से क्षमा मांग सकते And we हैं make it right with God. और परमेश्वर के साथ हम सीधा हो सकते हैं। If that family is alive, we can make right with them. तो हम जाके अगर वो परिवार जिंदा है जिसके साथ में बुरा किया तो हम उससे क्षमा मांग सकते हैं, मेल कर सकते And हैं। if it is not possible, if they are not alive or if they are not reachable or any of that sort, अगर वो जिंदा नहीं है, उन तक आप पहुंच नहीं सकते there तो is nothing that we can do. हम लोग कुछ नहीं कर सकते। But we ask forgiveness to the Lord, make it right with God, and speak the word of blessing. हम क्या कर सकते हैं, परमेश्वर क्षमा मांग सकते हैं, परमेश्वर का आशीष को हम कबूल कर सकते हैं। So we cancel the influence of the enemy over our life. तो हम क्या करते हैं, शत्रु को जो प्रभाव है हमारे जीवन से उसका हम इनकार या विरोध कर सकते हैं। So John chapter 10 verse 10 says, हम the देखते हैं, thief comes to steal, kill and destroy, but I have come to give life in abundance. हम देखते हैं कि यूहन्ना का 10वां अध्याय 10 के वचन में चोर आया चोरी करने, घात करने, नाश करने, प्रभु आया हमें जीवन देने के लिए, वो भी अनंत काल का जीवन देने के So लिए। enemy will come to cause problem, शत्रु आता है ताकि समस्या का निर्माण हो, but we speak life. लेकिन हम क्या करते हैं, हम जीवन की बातें So we करते हैं। cancel the work of the enemy or anything which has happened in the past, maybe because of wrongdoings of our fathers, we cancel it by our words. हम उस सारे बातों का इनकार करते हैं जो हमारे पूर्वजों ने गलत ढंग से किया या गलत अधिकार से किया, उस सारे बातों को इनकार करते हैं, उसको हम कैंसिल कर देते हैं And we speak life. और हम जीवन की बात करते So if you want to say it as a pattern, first identify the pattern. हैं। अगर आपको लगता है कि ये नमूना के तौर पे आपके परिवार में, तो पहले पहचानिए कि क्या हो रहा है। Identify the pattern, identify the cause. तो हम देखते हैं कि क्या किस लिए हो रहा है, क्या कारण है। So identifying the cause is subjective. I mean, it depends. आप देख सकते हैं कि कैसा हो रहा है ये। Sometimes we know the cause, sometimes we don't know the cause. कभी कभी हमें पता चल जाता है कि किस लिए हो रहा है, लेकिन कभी पता नहीं होता है So कि किस कारण से हो if रहा you है। are able to identify the cause, make it right with God. If repentance or forgiveness is needed, extend that. अगर आप जान गए कि किस कारण से हो रहा है तो आप उस बात को लेकर परमेश्वर क्षमा मांग सकते हैं और सुलझा सकते हैं। And things of the enemy, we cancel it and we speak life. और हम देखते हैं कि शत्रु की ओर से जो आ रहा है उसका अनादर करे, उसका इनकार करे और परमेश्वर का आशीष की घोषणा करे। Is that okay, Akash? आकाश ठीक है। So it is important for us to know first. सबको you explain English now. What Yes, is- yeah. what you say. Yeah, so I think the question is, how will people outside of Christ know that we are in Christ? हाँ, तो सबसे पहले ये बात है कि लोग कैसे जानेंगे कि हम मसीह में कौन है।
First of all, we need to know we are in Christ. लेकिन सबसे पहले हमें ये ज्ञात होना जरूरी है कि हम मसीह में कौन है, We need to have a strong grip on this truth. लेकिन इस पे मजबूत हमारी पकड़ होना चाहिए। And the second part is, as we learned from first day, we are the fruit bearing part. और दूसरा बात हमने जो पहला दिन में सीखा था कि हम वो डाली है जो फल देने वाली है। People are looking at us, we need to produce fruit which would show Jesus. और लोग हमारे तरफ देखते हैं ताकि हम उस डाली के प्रमाण फल को प्रस्तुत करें लोगों के प्रति। Meaning my life, my way of speaking, the way I conduct, the way I do things, it all should reflect how Jesus would do. तो साधारण भाषा में हम कह सकते हैं कि हमारे व्यवहार दर्शाता है कि हम मसीह में कैसे फल लाते हैं। So we don't create problems in the marketplace. तो हम देखते हैं कि हम गड़बड़ नहीं करते कुछ, We don't use abusive words, हम गलत भाषाओं का वापर नहीं करते, because all of these are things people are watching. क्योंकि ऐसा करने से लोग हमें देखते हैं And we become an example for people around us. लोगों के लिए हम उदाहरण बन जाते हैं। फिर And they would come and ask, hey, there is something different in you. लोग कहते हैं कि अरे तेरे में कुछ अलग बात है। And then we explain, hey, because I'm in Christ. हम लोग मसीह में इसलिए हम लोग ऐसी बात नहीं करते। Many times this happens in colleges. बहुत बार ये कॉलेजेस में होता है। Many young people would involve in unnecessary things. देखते हैं कि जवान लोग जो है अलग अलग बातों में वो लोग अपने आप को ढाल देते हैं, But those who are in Christ, they will have a testimony. लेकिन जो मसीह में उन्हें गवाह का जीवन जीते And हैं। now these people will come and ask, hey, what is so different with you? और लोग आके बोलते हैं कि अरे तेरे से तू इतना अलग क्यों है बाकी लोग से। So that is an opportunity for us to let them know that we are in वो Christ. हमें एक मौका मिलता है कि हम दूसरों को बता सके हम मसीह में हैं। So how is it possible? It is through our life. ये कैसे शक्य है हमें, ये कैसे जायज है हमारे लिए कि हम यीशु मसीह के फल को दिखाकर। You had yeah. Hmm. Hmm. Is it with respect to demonic problems, or is it general? So there's a family who comes, in that one person knows the Lord. थोड़ा जोर से बोलेंगे तो यहाँ तक Come. जोर से बोलो क्योंकि आवाज यहाँ तक नहीं पहुंच पा रही। We had a night, no, that night is there. जैसे प्रभु में लोग हैं और उनकी फैमिली बिलीव नहीं कर रही है, और बट वो फैमिली चाहती है कि हमारी फैमिली बिलीव करे, बट वो जो है नहीं करते, और उनको चिंताएं हैं कि कैसे वो मतलब प्रभु में आएंगे, उद्धार को कैसे पाएंगे, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि बैप्टिज्म से ही उद्धार होता है। प्रभु में बाइबल क्या बताती है हमें? बपतिस्मा से ही उद्धार होता है। बपतिस्मा से उद्धार होता है। हाँ जी। Yeah, thank you. So if one person in a family is saved and none of the others are saved, how would we encourage them to believe for them? तो हम इनका सवाल ये था कि एक परिवार के एक आदमी का उद्धार हुआ है, बाकी लोग को उद्धार नहीं हो गया, किस तरह से हम उनको उद्धार करा सकते हैं? Joshua chapter 24 verse 15. यहोशू इसका 24 का 15 पढ़ेंगे हम। But as for me and my house, we will serve the Lord. मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। So this is a promise or declaration that Joshua makes, तो ये जो है घोषणा है यहोशू करता है, that me and my family will serve the Lord. वो कहता है कि मैं और मेरा परिवार यहोवा की सेवा करेंगे। So maybe at the moment they are not knowing Jesus, और अभी वर्तमान में शायद वो यीशु मसीह पे विश्वास नहीं कर रहे, but we encourage them to believe in the word of God लेकिन हम उत्साहित कर सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने के लिए, and speak this over our family. तो ये वचन को हमारे परिवार पे हम घोषणा करेंगे। Isaiah chapter 54 verse 13. यशायाह का इसका 54:13 में हम देखते हैं। Write this down, okay? You will forget. आप लिख के रखिए, यशायाह इसका 54:13, यहोशू 24 का 17। Isaiah 54:13. यशायाह 54 का 13। All your children shall be taught by the Lord, and great shall be their peace. आपके बच्चों को परमेश्वर सिखाएंगे और उसकी शांति आपके बच्चों पे बने रहेगी। Did you get the verse? आपको मिला? यशायाह 54 का 15। Read, please read. 54:13. सॉरी 54 54 का 13।
अगर आपको मिला है तो पढ़ सकते हैं आप। तेरे सब लड़के यहोवा के सिखाए हुए होंगे, उनको बड़ी शांति मिलेगी। So the word says, all your children ये वचन कहता है तेरे सब लड़के shall be taught by the Lord. परमेश्वर की ओर से सिखाए जाएंगे। So we can declare this over our family. और ये वचन हमारे परिवार पे हम घोषणा कर सकते हैं। My children will know the Lord. मेरे 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 बच्चे यहोवा को जानेंगे। Maybe at present they are not in the ways of God, और वर्तमान में वो परमेश्वर के मार्ग पे नहीं चल रहे, but we continue to believe and pray upon these lines. लेकिन हम लगातार उनके लिए प्रार्थना करेंगे। Is this okay? ठीक है। Yeah. Hmm. So the question is, a person falls into sin over and over again, इनका सवाल ये था, एक व्यक्ति है जो पाप में हर बार वही पाप में गिरता जा रहा है, comes to pray, intercede, and he gets better. तो आता है, प्रार्थना करके जाता है, प्रार्थना करा के लेता है और उसे बेहतर महसूस होता है, But again, he falls into that cycle लेकिन फिर से एक बार वही पाप में गिर जाता है and has a lot of guilt in their heart. और उसके अंदर बहुत एक मतलब बोझ होता है, दोष होता है, And if God has forgiven, क्या परमेश्वर मुझे क्षमा किया। whatever you learn in day 1, 2, 3, teach them. तो आपने तो And they feel like that God has not spoken, God is not listening to them. आपने जो 1, 2, 3 दिन में सीखा है वो आपको उनको सिखाइए, ऐसा पास्टर कह रहे हैं। So how do we help them? Whatever you learn day 1, 2, 3, teach them. तो जो हमने सीखा उनको आप बताइए। Right? So what we learned about our old man being crucified with Christ. The power of sin is broken. पहले से उसको बताया गया, already they have told. Yeah. So the problem is happening because this has not become as a revelation. ये इसलिए हो रहा है कि उसको वचन का प्रकटीकरण नहीं मिला, It is a head knowledge. केवल उसको बुद्धि का ज्ञान है बस। But we need to help them understand. So take them through the verse again till they get it. तो हमें क्या करना है, उसको वचन के प्रति लेके जाना है, जब तक उसके बुद्धि में या उसके आत्मा में वचन नहीं बैठता उसको समझाना है प्रकाशन को। And 1 John chapter 5, that verse which we read, this is the confidence that we have that when we pray, he hears us. तो पहले जॉन में हम देखते हैं कि ये वहां पे लिखा है कि ये हमारी सास है कि जब हम प्रार्थना करते तो हमारी प्रार्थना को सुनेगा। 5 verse 14. देखते हैं कि पहला यूहन्ना 5:14, He hears our prayer. वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। And now this needs to come as a revelation. और ये प्रकाशन के तौर पे आना And we also said, yesterday, if you remember, we said 3 things in Romans chapter 6, verse 11, 13, and 19. हम देखते हैं कि रोमी का इसका 6वां अध्याय में हम देखते हैं, And we said that we need to know the truth, we need to count the truth, or yield to the and yield to the truth. हम देखते हैं कि सत्य को हमें जानना है, सत्य को मानना है, सत्य को हम अधीनता में देना है। Now, if knowing has happened, we have to count it as truth, तो अगर ऐसा हो रहा है तो उसे हमें स्वीकार करना है, and we have to yield to the Lord, तो present ourselves to the truth, हमारे अंग को परमेश्वर के प्रति समर्पण करना है। and move away from the face of guilt. तो हमें दोष के जो दोष लगा रहा है उससे हम दूर हो जाना है। Meditate on God's word, which talks about forgiveness of sins. और परमेश्वर के वचन पे मनन करे, जो वचन ये सिखाता है कि परमेश्वर मेरे पाप क्षमा किए। In the book of Micah chapter 7, we read, माइका 7वां अध्याय में हम पढ़ते हैं, all our sins he has cast down to the sea of the earth, the uttermost part of the sea. तो हम देखते हैं कि माइका के 7वें अध्याय में देखते हैं कि हमारे पूरे अपराधों को उसने समुद्र के गहराई में डाल दिया है। Isaiah chapter 1, we read that even if your sins are as red as
crimson, I will make it as white as snow. हम देखते हैं कि यशायाह के पहले अध्याय में अगर पाप आप लाल के समान हो फिर भी वो हिम जैसा श्वेत बना देगा। Psalm 103 verse 3, he forgives all your iniquities. और भजन संहिता 103 और 3 में हम देखते हैं कि वो हमारे सारे अपराधों को क्षमा करता है। So all of these verses which is connected to forgiveness, meditate on this. और जितने भी वचन है क्षमापना से जुड़ते हैं इसको हम मनन करना जरूरी है। And all of this which we learned yesterday, day before, go back to it, listen to it, teach them. जो हमने सीखा है 2-3 दिन पहले इस सारे बातों को उनको सिखाना, उस पर मनन करना भी उसे सिखाना है। ठीक है। What is the difference? So what is the difference between baptism of the Holy Spirit and baptism of the fire? इसका अर्थ क्या होता है कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और आग का बपतिस्मा? You will learn this in Holy Spirit class. ये आपको होली स्पिरिट का जो क्लास है उसमें सिखाया जाएगा। But in short, संक्षेप में आपको बताना चाहता हूं मैं, baptism of the Holy Spirit. Okay, so the word baptism means to be immersed, बपतिस्म का जो अर्थ है डुबोना। right? So water baptism means being immersed in water. वाटर का जो पानी का बपतिस्मा करते थे कि पानी में डुबोना। To be baptized into Christ means to be immersed in Christ. और यीशु मसीह बपतिस्मा लेना मतलब यीशु मसीह के साथ पानी में जाना। No. To be baptized in Christ means to be immersed in Christ. अगर यीशु मसीह का बपतिस्मा लेना मतलब यीशु मसीह के साथ बपतिस्मा करना, Right? To be immersed inside. To be inside. That's what Holy Spirit did when we came in और Christ. वो क्या है जैसे कि डालना डुबोना के Now, तरह। baptism of the Holy Spirit means to be immersed in Holy Spirit. अगर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अर्थ ये होता है कि पवित्र आत्मा के अंदर हमारा बपतिस्मा। Now, the question is, what is the difference between the baptism of the Holy Spirit and baptism of fire? तो हम देखते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और आग का बपतिस्मा। So this is in Matthew chapter 3 verse 16. हम देखते हैं कि मैथ्यू 3 अध्याय 16 वचन में, So John the Baptist is introducing the ministry of Jesus. तो ये जब यूहन्ना बपतिस्मा यीशु मसीह के सेवकाई के बारे में दर्शाता है वहां पर, And as Jesus is being introduced, they said, he will baptize you in Holy Spirit and fire. और जैसे यीशु मसीह को परिचय देता है वो कहता है कि यीशु मसीह आपको आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। So who does this? Jesus Christ is doing the baptism of the Holy Spirit and baptism of fire. तो यीशु मसीह जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और आग का बपतिस्मा देगा आपको। And he continues to say और ये जारी रखता है ये बोलने के that लिए, he will burn the impurities, we will burn the chaff. तो कहता है कि जो भूसा है वो जलाया जाएगा। So baptism of fire और जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है, आग का बपतिस्मा जो है, has to do with purification, तो वो जो है पवित्रता से संबंध रखता है, right? So he will purify the unwanted things. क्योंकि वो गलत बातों से हमें साफ करेगा। आग Like, he will purify us from the so that's what Holy Spirit, Jesus is doing through each one of us even now. और वो यीशु मसीह अभी भी हमारे साथ में कर रहे हैं, हमारे सबके साथ। So every impurities, everything which is not right in the eyes of God, as we learned yesterday, we are being sanctified. That is done by our Lord Jesus. कल हमने देखा कि कल यही हमने सीखा है कल भी कि हमारा वर्तमान चालू प्रक्रिया शुद्धता की ओर। So why do we say that? Because it is the context in Matthew chapter 3 when John the Baptist is explaining. क्यों हम ऐसा कर रहे हैं कि वो संदर्भ बताता है, मत्ती 3 अध्याय के अंदर ये संदर्भ बताता है पवित्रता के बारे में। So fire, when we say this is one way of looking at it. Holy baptism of fire means it includes purification. जब हम आग का बपतिस्मा होता है तो ये पवित्रता का समावेश होता है उसके अंदर। But there is also another version to it, because if you see in Acts chapter 2, they were also filled or touched by the tongues of fire. तो हम देखते हैं कि और एक संदर्भ में देखते हैं कि पवित्र काम उसका दूसरा अध्याय में कि वो आग के जीभ के समान उनको स्पर्श किया गया। And what we see after that is they were empowered to preach the word. तो हम देखते हैं उसके बाद क्या हुआ कि उनको सामर्थ्य मिला ताकि वचन की घोषणा कर सके। So fire is something which consumes, तो आग जो है जो कुछ खाता है, but it also has got tremendous power. लेकिन वो सामर्थ्य भी देता है। So we can say both. हम दोनों कह सकते हैं। Everybody okay? सबको समझ में आ रहा है? सब ठीक है? I'm very happy that you are asking questions. I was missing this from first 2 days. तो मैं बहुत खुश हूं कि आप सवाल पूछ रहे हैं। मैं 2 दिन से खुश हूं, मतलब Okay. आज खुश हूं। 53. So the application for us being redeemed is to declare that we are the redeemed. तो जो उपयोग है, ऐसा कहा जाता है कि यहोवा को छोड़ा ऐसा ही कहे, And to walk free, like knowing that we are redeemed. और इस बात स्वतंत्रता में हम चले।
And कि- so whenever we go through, see, Bible doesn't say that we don't go through challenges. बाइबल ये नहीं कहता कि आप समस्या से कभी जाओगे नहीं. We'll go through challenges. Then there is an enemy out there who is waiting to cause problems. तो हम लोग चुनौती से गुजरेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे जो हमारी जिंदगी में चुनौती को लाएंगे. And in First Peter we read that the enemy is walking around like a roaring lion. तो हम देखते हैं कि शैतान गरजने सिंह के सामने खोज रहा है. Meaning he's trying to put fear, he's trying to intimidate. तो वो हमें डराने की कोशिश कर रहा है, हमारी जिंदगी में भय लाने की कोशिश कर रहा है. But the word says, be watchful, be sober. लेकिन बाइबल कहता है जागरूक रहो, सावधान रहो. So we have to be careful. हमें बहुत सुरक्षित होना है. And we also read in Ephesians chapter 4, do not give a foothold to the enemy. हम देखते हैं कि शैतान को कोई अवसर मत दो. इफिसी किताब 4 अध्याय. We know that we are redeemed, हमें पता है कि हम छुड़ाए गए हैं, so we don't give a chance for the enemy. लेकिन हम शैतान को कोई अवसर न देंगे. We conduct our life in a godly way. तो हम अपना जीवन प्रभु के हिसाब से जिएंगे. We open our doors, हम दरवाजा खोलते हैं, enemy will come. वो शैतान आ जाएगा फिर. He will have legal access. तो वो कानूनी तौर पे हमारी जिंदगी में प्रवेश करेगा फिर. So what do? We close the door. हम लोग क्या करेंगे? दरवाजा बंद कर देंगे. Every entry points we close. हर एक प्रवेश द्वार को बंद कर देंगे. Be it watching unwanted things, be it speaking lies, be it gossip, be it anything, close it. सो जो देखने योग्य नहीं वो देखे नहीं, और झूठ नहीं बोलना, वो सारे बातों के द्वारा हम दरवाजा बंद कर सकते हैं. We need to close the door. तो हमको दरवाजा बंद करना है. If we प्रवेश. don't close the door, enemy will come. अगर प्रवेश द्वार को आप नहीं बंद करेंगे तो वो प्रवेश कर जाएगा. So one of the reason for people falling into sin over and over again is there is an open door. क्योंकि अगर ये कारण होता है कि लोग पाप में हर बार क्यों गिरते हैं, क्योंकि उन लोगों ने शैतान को अवसर दिया है. When somebody prays, the enemy leaves. तो जब हम दुआ करते तो भाग जाता है. And so Jesus said, when a wicked spirit leaves a person, it will search for a rest. हम देखते हैं कि दुष्ट आत्मा जब निकल जाती है एक आदमी से, वो ढूंढती है कि बलि And जगह. Jesus said, this wicked spirit will come back to his own house. तो देखते हैं कि जो बुरा आत्मा है वो फिर से आता है कि वही स्थान पे. And he finds that the door is open, everything is clean. हम देखते हैं कि दरवाजा खुला है, सब कुछ साफ सुथरा है. He will bring 7 more wicked spirits. और जाके हमारे उसके साथ में और दुष्ट आत्मा को Now लेकर. what is the problem here? Door was open. इसका समस्या क्या है? यहाँ पे उसने अपने प्रवेश द्वार को खुला रखा. So keep all the doors shut. तो हमें क्या करना है? सारा दरवाजा को बंद करना है. Yeah, आमीन. right. We'll go for a break. We'll come back and आइए हम विराम में जाएंगे. take the next section.